Namaste to all of you. This joyful occasion gives me an immense pleasure to welcome all the faces with new hopes, utter positiveness, new passion and spirit to our welcome program of Batch 2022. Today is the day for which you all have been waiting eagerly for weeks, for which we seniors have been planning and preparing so meticulously for so long. The moment has finally arrived. I am Ayush Anand from Batch 2021, honored to be your host for today's event. And I, on behalf of Batch 2021, would like to heartily welcome you all to the ceremony. Now I would like to give a formal touch to our program. We are really honored to have amongst us the extremely proficient and established figure of ITRA, the nodal officer from Department of Basic Principle. The man with the never-fading smile, respected Dr. Vaibhav Dalal sir. Thank you, sir. It is an honor to have you here. We have with us respected Dr. Nisha ma'am from Department of Basic Principle. Next, we have the person who teaches us the mother of all languages. Yes, Sanskrit. Dr. fellow classmates at the balcony, and of course our dear freshers among us. We are very glad to have you all with us today. First of all, I would like to thank you all for managing time out of your heavy schedule and making this very morning with your majestic presence. Thank you once again. Before starting the program, I would like to invite Sanskriti Gandhi on stage. The warm golden glow of candle is the symbol of life. The light emitted is considered to be auspicious. It represents enlightenment, prosperity, knowledge and wisdom. It acts as a dispeller of darkness. To make this morning pleasant, I request our dear teachers to come and light the lamp and enlighten the audience. We welcome Dr. Swati ma'am, lecturer of Prayer means the purification of one's soul. It takes away negative thoughts from our mind. It helps us to achieve our goals and dreams. Now I would like to call Himanshi, Jigyasa, Pratyaksha and Sakshi on the stage for Dhanvantri Vandana. I request every one of you to stand at your respective
event of the day. I will not say much about it, but believe me, you have dreamt of this so many times. This dream has awakened you numerous nights. This dream has motivated you to stay awake when the entire world was sleeping. The dream for which you killed so many joys. The dream which not only you saw for you, but your parents and family saw it with you. So any guesses from the fresher about which event I am talking about? On a lighter note, another importance of this coat is that it has big pockets where you can keep your phone and accessories. Shakul Gupta from UP. Anuradha Kumari from Bihar. Fourth row, the girl in yellow kurta. Come forward, please. Hello everyone. Now I request Nadu sir to please say a few words to our freshers. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. First of all, it is a very pleasant day, actually, you can say, when we are particularly special congratulations to the second term seniors. They have done a great job. The way they have organized, I really appreciate their management skills always. इन लोगों में जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लगता है हम लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा. That's really wonderful the way they organize the events. So for the new year, for the new batch rather, रोज ही मिलना है, रोज सुबह. Every day we are going to meet in the morning, talking a lot about new things. So one or two things I would like to say. Please give yourself time. Don't get carried away with one or two instances or one or two lectures. क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल अलग है. I will whatever knowledge you are going to gain in this 4.5 years plus 1 year, that is 5.5 years, it will be unique. It will be very different from what you have studied till date. A very very different world. So give yourself some time. तुरंत एक या दो किसी ने कुछ कह दिया या इससे अपना मन जो है वो डिप्रेशन में या इस टाइप की नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है. You should always think positive. There are a lot of opportunities which are coming to your way, and that is why your seniors are organizing such a great event for you. So main message is, please give yourself some time. थोड़ा 2-3 महीने चीजों को समझो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नई दुनिया होने वाली है. जो अभी तक पढ़ा है उससे बहुत आगे का सोच आयुर्वेद में है. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस यही मैं भी कोशिश करूंगा कि आई विल ट्राई टू डिलीवर माय बेस्ट. लेकिन फिर भी आई रिक्वायर योर सपोर्ट टू हैव सम पेशेंस. पेशेंस इज द की हियर. Once you see, once you understand, once you start following the Ayurvedic way of life, then you are going to enjoy the fruits. And this is such a science. I am not here only for the sake of speaking. Whatever I say, it is from my heart and my experience of about 20 years in Ayurveda now. So it has a lot to offer. So don't get yourself disheartened. पहले तो ये है, इतने अच्छे मार्क लाए हैं, इतनी मेहनत की है, तो ये नहीं सोचना कि कहाँ आके फंस गए, या जैसे कुछ लोगों का हुआ कि नेक्स्ट ईयर भी. तो थोड़ा सा, और 3 to 4 months you have to give dedicatedly to Ayurveda, because once you understand the way of Ayurveda thinking, then the life will be very easy for you. Otherwise, it will be just passing the examination. So
So most important thing is give yourself some time. कोई भी तकलीफ होती है, आपके सीनियर्स ने इतना अच्छा आपको आयोजन किया है, आपके लिए जगह की व्यवस्थाएं की है और आज का आयोजन पे बता रहा है कि दे आर इट्स अ बिगिनिंग ऑफ वेरी गुड ट्रेडिशन। तो मैं इनको भी कहा था, आपके सीनियर्स को भी और आप लोग को फर्स्ट ईयर को भी, सम्मान दो और सम्मान लो। ओके, डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग कि भाई उनको हम मूर्ख बनाते रहेंगे और अपना काम निकालते रहेंगे, वो 2-3 बार ही चलेगा, फिर द ट्रूथ इज गोइंग टू बी एक्सपोज वन डे। तो अच्छा रेपुटेशन बना के रखो। ये जो रिलेशन है आयुर्वेद में, कब कौन कहाँ काम आएगा, दिस माइंड माय लैंग्वेज दिस, कब कौन आपको मिलने वाला है, किस पोस्ट पे, समय का भरोसा नहीं है। इसलिए मेंटेन गुड रिलेशंस बिटवीन विद इन योर लिमिट्स। यू शुड नॉट क्रॉस द लिमिट्स। So that is the same parampara or tradition you need to follow, giving respect to seniors and deserving love from them. तो दोनों तरह का जो कांटेक्ट है वो हमेशा बना रहे। आज आपका वेलकम सेरेमनी है, जब 4 साल इन लोग के पूरे होंगे तब आप लोग को भी फेयरवेल देना है। तो ये केवल एक टोकन ऑफ रेस्पेक्ट है किसी के लिए, तो एक ट्रेडिशन आप बना रहे हैं एंड दीज रिलेशंस आर गोइंग टू मेंटेन थ्रू आउट योर लाइफ। This 4.5 years, that is okay, the time just runs away. Your seniors are completing 1 year now. So time is going to run away. Okay, time and tide wait for no one. But the relations you maintain, that will be forever. तो कोई भी तकलीफ आती है तो हम लोग भी हैं, टीचिंग फैकल्टी आपके साथ है। सबसे पहले अपने सीनियर्स से बात करनी है, नहीं होता है तो फैकल्टीज हैं कि आपके साथ। Whatever problems you face, whatever is in our control, we would try to help you. लेकिन मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, वो थोड़ा टाइम और पेशेंस चाहिए। 3 to 4 years you have to study dedicatedly. Yes, I tell you, you will feel, oh, what is this going on in this classroom? But don't get disheartened. Try to apply that. There are such beautiful things in Ayurveda. Okay, कुछ authorities भी कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए कुछ ट्रांजिशनल करिकुलम या अच्छे एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाए जाए। अब वो क्या होगा, I don't know. But there are some efforts going on. There are so many people in Ayurveda doing wonders. Okay, so you have to give your 100%. It's going to be tough. I tell you very clearly, it's going to be challenging. ये कोई cake walk नहीं होगा कि easily मिल जाएगा, हो गया। Now the syllabus has also changed. Now your seniors are also setting that benchmark which we have seen today. So you have to follow that tradition. Okay, तो ये सब चीजों के साथ, बाकी तो रोज ही जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में कुछ भी नहीं अभी बोलूंगा, नहीं तो आधे भाग जाओगे। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं, बट आई टेल यू वेरी क्लियरली, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद आयुर्वेदा एंड ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। ओके, बिकॉज दिस हैज कम बाय ट्रेडिशन एंड दिस विल कंटिन्यू फॉरएवर बाय द ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन या परंपरा एक से दूसरे को ट्रांसफर, तो यही आपको पहला आपको सीखना है, कैसे अपने सीनियर्स के साथ बिहेव करना है, कैसे टीचर्स के साथ बिहेव करना है। आपका अधिकार है, यू कैन अलाउ टू रेज क्वेश्चंस, बट इट शुड बी विद इन सर्टेन लिमिट्स। देयर इज सम बाउंड्री बिटवीन ईच रिलेशन, so you should not cross that boundary and expect everything. It is your right, being juniors, it is your right to expect everything from seniors, but when you will achieve that right, when you learn to respect. Okay, so this is very important message I want to give to you. So once again, from bottom of my heart, I heartily welcome you all to this ITRF family. Lot of scope is there, lot of opportunities are there. Give yourself some time, try to acclimatize with the conditions, क्योंकि सभी बहुत दूर से particularly this time we have variety of flowers in our bouquet. We have 2 girls from the northeast also, so special care I would like to request your seniors also, because for them it is a very challenging job. So take care, because in Ayurveda it is a Shishya Vatsalam Adhyapaka. So you have to maintain good relation. It's very, very clear. It's not highly professional attitude which we see in other sciences. Here we believe Shishya Vatsalam Adhyapakam. So that is very, very important. But you should not again misuse that love or affection. So this is my message. Every day we are going to meet and talk about it. So once again I welcome you all to this ITRF family. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Now I would like to request Swati ma'am to say few words.
good morning and Jai Dhanvantari. Yes, as जैसे कि मैं हमेशा पहले लेक्चर में बताती हूँ, you are not from any Bihar, UP, MP or any from any state. You are from India, and few are from our guests from international countries are there. Don't use foreigner word. I always tell you that don't use foreigners. Okay, they are international students are also there with us, and yes, it is a very good step you people have taken to welcome all newly admitted first year scholars. Really, I appreciate your efforts and your management administration. Really, congratulations to old batch also for organizing such a beautiful event. And yes, I welcome all for newly admitted first year BMS scholars, either Indian or international scholars. Okay, and one more thing I would like to tell. Yes, you have each and every right to learn. Okay, but you know, rights always come along with responsibilities, and you have to also carry some responsibilities, which are your responsibilities now as a student of one medical fraternity. Ayurveda is medical fraternity, if you know. Now it is just yes, competing with contemporary medical science, that is allopathy. We are also being doctors, physicians, clinicians, surgeons, right? Not we, you, right? So, my first request would be just behave like doctors, Vaidya. Vaidya कैसा होना चाहिए? It is mentioned in our Ayurveda very particularly, perfectly. Okay? Then, which responsibility you have? Rights है, सभी rights है. You have each and every right to learn, right to ask questions, right to raise complicated questions. But which responsibility is there? Is there any responsibility of students also? Which? Only respect is only not means only respect, ना? Respect से पास हो जाओगे आप. Sincerity. मीन्स आज आपको फ्लावर दे दिया सीनियर ने, तो सीनियर ने अच्छे केस में हम लोगों को पास करने में ऐसा लगता है आपको, हाँ? या टीचर्स को ट्रीट दे दी तो पास करेंगे ऐसा लगता है? You should attend each and every class. Okay? You should attend. I am expecting same attendance. Okay? अभी जो ऑल इंडिया में मैं attendance देख रही हूँ, same attendance in each and every class of means either basic principle or my own subject, that is Priya Sharira, or I think you are attending anatomy only. But there are Priya Sharira also. Okay? Priya Sharira, which is basic subject. Without Priya Sharira, you can't do physics here. I am every time I am telling you that. Okay? So yes, may I expect same thing, that is continuous attendance from you people? Yes, ma'am. From both the batches? Yes, ma'am. Okay, then all the best for both batches, and welcome newcomers. Yes, welcome in ITRA family. If you know, I don't know you know or you don't know, this is Choti Kashi, and it is well known for Ayurveda. Means it is, we can call it is the region or what, Bhumi of Ayurveda. Okay, who will be here will be become best Ayurvedic physician, clinician or surgeon, whatever. Okay, so wishing you all the best and good luck, and with this I will stop. Okay, thank you.
All of you just repeat after me. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. That's the Josh. See, every time, every day, we don't have that Josh. Sometimes it is there, sometimes it is not. But we need to come up with that Josh. So remember this Josh of the first day. Because when you are here on the first day, you have lots of enthusiasm. I want to do this, I want to do that. Some people are here by choice. Some people are here by Chance. or by force. Right? Am I right? Yes, ma'am. So anyone who is here by choice, please tell your reason. Yes. Mike. What is the reason you have chosen this stream? Yes, you can reply in Hindi or English, whatever is okay. उसमें ना जो भी इलाज करते हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज का That is the effect and side effect of each and every side. हर एक चीज का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और हर एक चीज का अपना एक नेगेटिव पॉइंट है. Why you are here? What I want to convey, are you getting me? If you are buying a mobile, there are some loopholes in that, there are some benefits in that. All the features are inbuilt. We need to understand here. That is the most important thing in our life, right? So think on that. It's good you have chosen this stream because it is your choice, and I appreciate that you will do best in this. Okay. Anyone who is here by chance, be free. Yes, please. I want this spirit. Anything. Here by chance. I did not score much marks, but I'm happy with that. I'm going to make this chance my choice. That's the good spirit. This is good thing. See, sometimes some things what we expect that may not come in our life. That may not come in our life. But what is the thing coming in my life? This is about you. What is the thing which is coming or came in my life? I will accept that. This is the best thing. And this is the very good way to live a life. If you are living this kind of life, if you have this kind of thought, then you don't have worry. And I will say that if you will have no worry, you are disease free. So if you want to be disease free, then try to follow this things. Okay, I have asked two questions. One is by choice, one is by chance, third thing is by force. Anyone who is here by force, please. Yes. What is your name? Please introduce yourself. I forgot to take the introduction of other people. Suraj Kumar. From? Okay. बाई फोर्स आया क्या आया क्योंकि आज की सोसाइटी ऐसी है कि
बाकी सब कर लेते हैं, ये बस सब कर लेते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे लास्ट में अटेम्प्ट था, मुझे देना था, तो मैंने बाई फोर्स ही मैंने वो किया कि मुझे करना है, क्योंकि मेरे घर पे भी था तो वो सब आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, मेरे एमबीबीएस तो हमारा घर पे वो होता था कि मुझे एमबीबीएस करना है। अगर हमारे घर में कोई बीएस ना होता तो शायद अगर कोई बीएस होता तो कोई कोर्स करते हैं, पहले बीएस कर रहे थे, साथ सेकंड ईयर कर गया तो बाई फोर्स। Okay. So now you are trying to be happy with this. Trying. Are you trying this, or still you don't want to try to be happy? I will try. Okay, good. You should also try. See, we have different waves of our mind. We have different conditions. Every day we are different, not same. But still we need to stable. We need to be stable at one platform. And now I will introduce with the strength of this science. Ayurveda is now globally widely spread stream. You are not only the personality or personal from the state or your area. You will be soon known as a global personality. I hope you have heard the news about GCTM. So, WHO, give me the full form. They are coming here to get something, give us something. Why? Because they have a potential to get something. With this small introduction, I would like to say that wherever you are, by choice, by chance, by force, try to understand this and come out from this pain. You should come out from your pain, your worries, and enjoy this 5.5 years. Sometimes you like it, sometimes you don't like it, some subjects are boring, but still you will get something from that. अगर आप यहाँ पर रहोगे तो कुछ मिलेगा. If you will give up, you will get nothing. So it's now up to you. You want to get something or you want to give up? You want to be failure or you want to be successful? सक्सेसफुल बनना हर किसी को अच्छा लगता है और वही लोग अच्छे लगते हैं जो सक्सेसफुल बन के दिखाते हैं. ठीक है? So try to go on that pathway. Wherever you feel hurdles, you try to get some help to come out from them. And hope you will enjoy your journey of a 5.5 year over here in the Jamnagar. Jamnagar is a very small city, very cool city. Mostly it is safe city for girls, but still you need to take care of yourself. Especially I want to indicate the girls. If you are going to the wrong way, you may get harm. But if you will try to control yourself, you will be in your limits. Then it will be beautiful journey for you. Okay, thank you very much and welcome. गुड मॉर्निंग। हम सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं जो नए आए हैं और आयुर्वेद के बारे में तो ज़्यादा चलते हैं और ये सभी सीनियर्स ने बताया बहुत सारा। मेरा सब्जेक्ट तो आयुर्वेद है तो मैं आयुर्वेद के बारे में तो नहीं जानता, संस्कृत है मेरा सब्जेक्ट, तो उसी के बारे में हम जानते हैं। तो उसी के बारे में तो अभी पता नहीं, जरूरत नहीं है लेक्चर में मगर राजस्थान में निशा मैडम ने बहुत सारी चर्चाएं की और इसके बारे में आप सबके साथ, तो इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जिस फील्ड में आए हैं उसी फील्ड में आयुर्वेद के
ज्ञान की चरम सीमा तक आप सभी पहुंच पाए, वैसे ही सभी को शुभकामनाएं। बताए बिना ही सही। ठीक है, मैं कुछ रट के नहीं आया हूँ तो मेहंदी नहीं होगा। हाँ सही है। बोले मारी, आप सभी नेशनल इंस्टीट्यूट में आए तो थोड़ी ये है कि आपको दिमाग में ये होगा कि थोड़ी नेशनल रिक्वायरमेंट्स होगी, तो एक ऐसे क्लियर देते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट किससे बनती है? किससे बनती है? अरे अपने पे नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल फैसिलिटी से नहीं बनती है। आपकी एक ही कंप्लेंट रहेगी थ्रू आउट योर जर्नी कि यहाँ पे ये नेशनल फैसिलिटी नहीं है, ये नेशनल फैसिलिटी नहीं है। भाई नेशनल इंस्टीट्यूट बनती है नेशनल विचारधारा से, नेशनल प्रकार के लोग होते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस होती है। आप यहाँ पे जो सब देख रहे हैं वो सब क्रीम है नेशनल। ये चार दीवारें नहीं बनाती है नेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले टीचर, यहाँ पे जो आपके सीनियर है, जो यहाँ पे पढ़ के जाने वाले और पढ़ चुके हैं, ये सब बनाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट। क्योंकि जो आपके सपने हैं या जो आप डे ड्रीम करते हैं, बहुत से लोग वो जी रहे हैं और बहुत से लोग वो आगे जीने भी वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मैंने 3 प्रकार के लोगों की बात की, जो चांस से आए, जो फोर्स से आए हैं वगैरह। तो हमारा तो ऐसा सोचना है कि भाई अगर आप जिस आयुर्वेद में त्रिवर्ग की बात की है, जिस संहिता को पढ़ने से त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है, जो हमारे संस्कृति में भी है कि भाई चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए ही सभी कार्य करने चाहिए, उसमें से 3 तो संहिता से मिल रहे हैं, एक बाकी जो है वो आपकी विचारधारा पे है मोक्ष। तो अगर कोई भी कार्य करना ही है थ्रू आउट द लाइफ, तो संहिता को एक बार आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, एक बार इन सब चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। एक बार आप देखें कि जो आप डे ड्रीम कर रहे हैं, जो आयुर्वेद के सोच में या फिर चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, किसी को इसमें से धर्म के लिए ही कुछ करना है, किसी को अर्थ के लिए करना है, कोई काम के लिए आया है, मोक्ष तो शायद आप ये भी नहीं होगा किसी को। लेकिन जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 में से कोई ना कोई तो सिद्ध करके जाओगे ही, और 4 से बाहर का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य है, 4 से बाहर तो कोई का कुछ नहीं होगा। तो थ्रू आउट दिस जर्नी आपको जो भी आप, क्योंकि कोई रोकने से रुकने वाला नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये है कि हमें ये नहीं चाहिए, तो कितना भी भरोसा जाए आपको, आप नहीं रुकने वाले। लेकिन आपके आसपास का माहौल देखिए, आप अच्छे लोगों के परिचय में आए, ये सब चीजें अगर करेंगे तो उस हिसाब से आप वैसे विचार रख पाएंगे। बाकी तो आपका सफर होता रहे। Darshit was, Prateek was from 4th year and Kartik was from 3rd year. Please give them a huge round of applause. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. With us, Darshit was, Prateek was from 4th year and Kartik was from 3rd year. Please give them a huge round of applause. ठीक है, अभी पढ़ना कैसे वो तो सब सिखाएंगे, अभी क्वालिफाइड कैसे देना है वो खुद सीखना है। ठीक है, केम शो मजा ये है कि यत् तत्कर्म यत् न बंधाय सा विद्या या मुक्त। कर्म वो है जो बांधे नहीं और विद्या वो है जो मुक्त करे। अगर हमेशा काम करते रहने की सोच से और वो काम में निष्फलता मिले सफलता मिले उससे सीखने की सोच रखोगे तो किसी भी इंस्टीट्यूट में रहकर भी आप वो काम कर सकते हैं
जो यहाँ पर रहकर भी शायद कुछ लोग नहीं कर सकते। तो आप लोग अभी जो भी मनसा लेकर आए हैं यहाँ पर, आप जब मेरे स्टेज में आओगे तो आप अपने आप को ग्रेटफुल और अपने आप को ब्लेस्ड ही महसूस करोगे। ये मेरा वादा है। और दूसरी बात, अभी आप शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोलिए, ये बहुत उपयोगी है, बहुत ही जरूरी है। और वो है रामः रामो रामः प्रथमः। हे राम हे रामो हे रामः संबोधन में पढ़िए। ये विभक्तियां बहुत काम लगेगी। थैंक यू। बढ़िया यार, ये इतने सारे लोग हमारे आते तो चलते हैं। मैं अपनी छोटी सी पोएम और नज्म भी कह सकते हैं आप लोगों के स्वागत के लिए लिखी है, पेश करता हूँ। वैसे हो अभी तुम छोटे बच्चे जैसे, वैसे हो अभी तुम छोटे बच्चे जैसे, वो बेखबर दिनचर्या की यहाँ की जिससे आए हो घर से तुम बहुत दूर, मगर भूल न जाना ये छोटी काशी है मेरे हुजूर। लगता आयुर्वेद तुम्हें होगा बहुत पुराना, लगता आयुर्वेद तुम्हें होगा बहुत पुराना, मगर आज भी जानता है जटिल रोगों से कैसे मुक्ति है दिलाना। हाँ है सिद्धांत आयुर्वेद के सदियों पुराने, हाँ है सिद्धांत आयुर्वेद के सदियों पुराने, मगर देते जन्म नए उसूलों को आज भी इस आधुनिक जमाने। ना सोचना सिर्फ रटने हैं श्लोक यहाँ पे, ना सोचना सिर्फ रटने श्लोक हैं यहाँ पे, सीखने हैं इससे जिंदगी के तौर तरीके यहाँ पे। माना कि सीनियर हैं हम, माना कि सीनियर हैं हम, सीनियर सिटीजन समझ लेना। अगर कोई परेशानी कोई मुश्किल आए तो बेझिझक याद कर लेना। करते हम स्वागत जिंदगी के इस नए अध्याय में तुम्हारे, करते हम स्वागत जिंदगी के इस नए अध्याय में तुम्हारे, जहां ना सिर्फ सीखना है बल्कि खोलने हैं कई रहस्य आयुर्वेद के हमारे। और जाते आते कुछ एक लाइन और बोलना। रास्ता भी हूँ चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। रास्ता भी हूँ चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम न समझो जो झट पिघल जाऊंगा, मुझे मोम न समझो जो झट पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ डूब कर भी निकलना जानता हूँ। थैंक यू। दो फीलिंग्स होगा, थोड़ा सा डर भी होगा और एक्साइटमेंट भी होगा। एक्साइटमेंट इस बात का कि पता नहीं तुम्हारा कॉलेज लाइफ कैसा होने वाला है। 18 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का, कुछ सेलेक्ट वो हर साल बढ़ता रहता है, आबादी बढ़ रहा है तो उसे वहां से बढ़ता रहता है। देख लिए होंगे और वीडियो क्रेडिट पीसी को जाता है प्रत्यक्षा शुक्ला, वही हमारे क्लास की हमारी क्लास की वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर। अरे भाई रुको जरा, ये तो बस ट्रेलर था, पूरी जर्नी हमें बतानी है। 10 महीने का सफर है हमारा, इसे बस 10 मिनटों में दिखानी है। देखो आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, किसी दिन हमारा भी फर्स्ट डे हुआ था। देखो टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए हमारा टी से टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, 2 मई को हमारा फर्स्ट डे हुआ था। तुम लोग पहले आ गए हो, अच्छा है, हम लोग को ज्यादा टाइम मिलेगा जानने का, जानने का, एक दूसरे को समझने का। बाकी तो तुम समझदार हो ही, ठीक है। तो बात प्रथम दिन और हमारे नए जीवन की शुरुआत की है। वो फर्स्ट डे और पहले दिन कॉलेज जाने के उत्साह की है। नहा धो के चढ़ा के आकर, तुम लोग को यहाँ पे आपने चढ़ाने मिला है, हमको चढ़ा के आना था, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी है। नहा धो के चढ़ा के आकर निकल पड़ी ITRA की पलटन। स्वागत तिलक रोज और पेड़े से हुआ। हम लोग को भी गेट पे रोज और पेड़ा मिला था, वही वो कॉपी किया हमने। पेड़ा नहीं मिला होगा तुम लोगों को, कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ गया है। तो नहा धो के चढ़ा के आकर निकल पड़ी ITRA की पलटन। स्वागत तिलक रोज और पेड़े से हुआ। दादू सर की मीठी बातों ने दिल को छुआ। दादू सर याद है ना, वही जो मुस्कुराते हैं, उनके मुस्कुराहट पे मत जाना। अभी मुस्कुराएंगे, अटेंडेंस का दुख नहीं बताएंगे, जब आएंगे तो बहुत मारेंगे, ठीक है। बहुत लोग एग्जाम में नहीं बैठे हैं, मेरी तरह हम भी नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि तुम्हें से बहुत लोग नीट की तैयारी करोगे, हम भी किए थे, बट देखो आज माइक लिए हुए हैं।
तो तुम्हें से बहुत लोग ऐसे होंगे तो तैयारी करोगे, वापस यही पोडियम पे कहोगे आयुर्वेद जय आयुर्वेद। ठीक ना इग्नोर कर लेना है प्लीज। वो स्क्रिप्ट में नहीं है, वो अपने से निकलता तकिया करार में मेरा। तो स्वागत तिलक रोज और पेड़े से हुआ, दादू सर की मीठी बातों ने दिल को छुआ। अनजान लोगों के बीच बैठा मैं सोचता ये रहा कि कौन कितना तेज और नीट में कितने कितना है फोड़ा। तुम्हें से बहुत लोगों को ऐसा डाउट होगा कौन कितना तेज है, कौन मतलब 590 नंबर लेके आए हैं बहुत ज्यादा तेज है। ऐसा नहीं है, 440 वाले भी आप सारा श्लोक रट के सुना देते हैं और 583 वाले को एक श्लोक नहीं आता। मेरा ये पर्सनल दुख है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मतलब जो लोग कम मार्क्स भी लेकर आते हैं नीट में वो बहुत अच्छा आगे स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जो 590 नंबर भी लेकर आए हैं आपको कुछ समझ नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता। तो मार्क्स मैटर नहीं करता है, जो चीज तुम लेकर आओ यहाँ पे वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये एकदम नया जीवन है, नया लाइफ है, हर कुछ नया दिखेगा तुमको, तो ये तुम्हारा नया शुरुआत है। ठीक है, तो अनजान लोगों के बीच बैठा मैं सोचता ये रहा कि कौन कितना तेज और नीट में किसने कितना है फोड़ा। We introduced ourselves और हमें मोटिवेशन भी था मिला, कोई यूपी बिहार तो कोई राजस्थान से था था। ठीक है, तो हम भी ऐसा हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन हम लोग मेजॉरिटी में 3 ही स्टेट के लोग हैं, यूपी बिहार और राजस्थान। तुम्हारे में तो काफी ज्यादा वैरायटी है। तो we introduced ourselves और हमें मोटिवेशन भी था मिला, कोई यूपी बिहार तो कोई राजस्थान से था। न किसी से कोई रंजिश न कोई शिकवे थे, जब हम भारत के अलग अलग गली से IITR में मिले थे। देखो अभी क्या है कि तुम लोग भी एकदम ना किसी को जानते हो ना पहचानते हो, सब तुमको अच्छे लगे, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ग्रुप भी बना लोगे, ये सब डिसाइड करके 11 लोगों का 15 लोगों का पहला 1-2 महीने लगते हैं एक दूसरे को समझने में, तो बहुत ज्यादा फेमिलियर मत हो जाना है। ठीक है, टेक योर टाइम, जान फिर वो जो बॉन्डिंग होता है स्ट्रांग वाला वो करना है। ऐसी बहुत सारी मंडलियां बनती हैं, कुछ मंडलियां चल जाती हैं और कुछ बिखर जाती हैं, तो ये सब लाइफ का पार्ट है, बस दुख नहीं होना उससे। किसी से कोई रंजिश न कोई शिकवे थी, जब हम भारत के अलग अलग गली से IITR में मिले थे। चेहरे नए और माहौल भी नया था, बाहर कड़कती धूप पर अंदर समा बंधा था। देखो यहाँ पे भी समा बंधा है, नए लोग हैं, नया नया एप्पल मिला है, नया नया पेड़ा मिला है, नया नया समोसा मिला है, तो सब कुछ नया है, बाहर धूप भी है, तो ये रिलेटेबल उस टाइम की तरह। तो चेहरे नए और माहौल भी नया था, बाहर कड़कती धूप पर अंदर समा बंधा था। अब देखो हम लोग का ये चीज वीडियो के थ्रू हम लोग दिखाने चाह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। इस पे कोई राइमिंग बैठ नहीं रहा था मेरा, तो ये क्या है कि देखो राइमिंग कुछ रेयर इवेंट पे बैठता है, जिसको पहला देखो रेयर था। अब ये साप्ताहिक यज्ञ नाम है, हर रोज होता है, हर सप्ताह में होता है, तो इतना राइम नहीं आता इस पे हमको। तो ये एक यज्ञ है जो ऑर्गेनाइज करते हैं सीनियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी जाते हैं। We have improved well. अच्छा तो देख रहे हो, पंक्चुअलिटी देख रहे हो। 10 मिनट और लेट होते तो शायद हम लोग भी नहीं पाए जाते हैं। क्लास हमारा 12 बजे से नहीं शुरू होता है, 9 बजे से शुरू होता है, 12 से 1:30 बज जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर दिस क्लास में 2 तरह के ग्रुप बन गए। तुम्हारे में भी होगा, 2 तरह के ग्रुप बन जाएंगे। एक जो आयुर्वेद से प्यार कर लेंगे और दूसरा वो जो अभी जय आयुर्वेद नहीं बोल पाएंगे, मतलब उनको अभी भी उनमें हिम्मत बचा हुआ है कि एक बार और नीट दे ले, मतलब शौक है तो पूरा कर लेना, बाकी जब आना तो फिर से स्वागत किया जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर दिस क्लास में 2 तरह के ग्रुप बन गए। एक जिन्होंने बीएमएस को अपनी डेस्टिनी और गोल बना लिया, और दूसरे वो जो अभी तक नीट के मायाजाल से नहीं निकल पाए। बहुत मायाजाल है, 4-5 ड्रॉप कॉमन है, तुम में से बहुत हो गए जो 3-4 3 तो कॉमन हो जाता है, बाकी 4, 5, 7, 8, 9, 10 ये सिलसिला चलता रहता है जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, तो कुछ लोग आयुर्वेद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पीसीबी से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाए। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइम करने के लिए छोटा करना पड़ता है। तो कुछ लोग आयुर्वेद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पीसीबी से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाए। वो बेचारे घर में बैठे फिजिक्स के सवाल लगा रहे थे, सत्यम याद है,
तो हम दोनों रूममेट थे, हम लोग सवाल लगा रहे थे उस टाइम पे। कुछ लोग आईवीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पीसीबी से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाए, वो बेचारे घर में बैठे फिजिक्स का सवाल लगा रहे थे, घर में मतलब जामनगर के ही घर में। बस इतना भी हम लोग टाइम नहीं वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा शिक्षोपनयन संस्कार हो रहा है तो आधा घंटा मिला, हमने सेलिब्रेट करा था। वी वर वेरी फोकस्ड ऑन आवर पीसीबी, बट हम दोनों यहीं पे हैं अब। ऐसा फोकस मत करना प्लीज। तो वो बेचारे घर में बैठे फिजिक्स का सवाल लगा रहे थे, जिन्होंने बीएमएस से प्यार कर लिया वो शिष्योपनयन संस्कार बना रहे थे। उस दिन हमारे सीनियर धनवंतरी यज्ञ और हमसे ओथ दिलवा रहे थे, बैच 2021 श्वेत वस्त्र में धनवंतरी प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। दम शराब के नाम पे कोई इशारे तो कोई स्किल के नाम पे अपना हाथ घुमा रहा था, रिया ने किया नृत्य तो हमारा कान्हा बांसुरी बजा रहा था। दिखाना कोई स्किल के नाम पर हाथ घुमा रहा था और कोई नृत्य दिखा रहा था। तो ये सब हुआ था हमारे शिष्योपनयन संस्कार में। तुम लोग का भी होगा, वो कॉलेज करेगा, क्लास तुम्हारे सीनियर्स की तरफ से है तुम्हारा पे। मतलब ऐसे बहुत रेयर मेडिकल कॉलेज होते हैं ना जिसमें ये इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट हमारा कॉलेज गुजरात में है, शायद इसलिए यहाँ भी ये कंपल्सरी हो जाता है इंडिपेंडेंस डे में आना, रिपब्लिक डे में आना, और आराम से तुम पे एप्पल वगैरह। कुछ लोग बेशर्म होते हैं जो नहीं आते हैं, वो आपस में बात करते रहते हैं, बट ठीक है, आना जरूरी होता है, ठीक है। तो हाथ में झंडा मन में जोश, हाथ में झंडा मन में जोश, करते भारत माँ की उद्घोष, सैनिकों का मान बढ़ाने, आजादी का जश्न मनाने पहुंचे बंधन वीर सिपाही, ऐसे हमने स्वतंत्रता दिवस मनाई। फील हो रहा है कि तुम लोगों को? हाँ, मतलब समझ रहे हैं, ऐसा चीज होगा तुम्हारे साथ भी होगा। जो सब तैयार है ना, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है कुछ महीनों में, तो देखो ये क्या था कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि टीचर्स डे कैंपस में सेलिब्रेट किए थे, तो टीचर्स को बहुत पसंद आया था। तो ये तुम्हारे लिए एक आइडिया है, वो लोग मना करेंगे नहीं मनाया जाता है दिस दैट, बट तुम डटे रहना, ठीक ना। फिर हाँ, तो ऐसे टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट किए थे, बहुत अच्छा लगा था टीचर्स को। बाकी राइम नहीं बना, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? हाँ, उससे पहले हम कहीं नहीं दिखे हुए क्योंकि हम नीट का एग्जाम दे रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद से हम दिखेंगे थोड़ा बहुत। पहला दिन तो सब आता है, हम भी आ गए थे चलते फिरते। बाकी इसके बाद देखो क्या क्या था कि ये जो अभी तक जो भी इवेंट हो रहा था, अभी तक देखो हम लोग सिर्फ पढ़ाया जाता था। 9 से 6 के मैदान में लोग फंसे हुए थे। 6 9 से 6 9 से 9 to 6 9 to 6, ठीक है। तो 9 से 6 के मैदान में लोग फंसे हुए थे। सुबह 9 बजे नहा धो के आना है, बिना नहाए भी आ सकते, और फिर 12-1 बजे तक क्लास होता था, फिर 3 बजे से संस्कृत पढ़ने आ जाओ। पहले तो लोग आते थे, बाद में पढ़ना बंद कर दिए, बट तुम लोग अटेंडेंस का बहुत इशू हो गया, ठीक है। तो 3 से 6 का भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इसी बीच में लोग फंसे रहते थे, कोई इवेंट वगैरह नहीं होता था, कोई फंक्शन नहीं। ये सब तो जबरदस्ती का फंक्शन हम लोग बनाए हैं, जैसे टीचर दिन नहीं था बना लिए, ठीक ना। वो होता है अपने साइड से होता है कि लोग थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, नहीं है तो भी घुस जाते हैं। जनरल में कभी ट्रैवल की होगी नहीं? बहुत अमीर हो गए तो जनरल क्लास स्लीपर में क्यों नहीं? बहुत गरीब हो गए, ठीक है। जनरल और स्लीपर में क्या होता है कि भीड़ हो तो नहीं हो तो जगह नहीं है, 10 लोग का सीट है, 50 लोग बैठे हुए, वो एडजस्ट करने का टेंडेंसी आ जाता है हमारे साइड में। तो जहाँ फेस्टिवल नहीं है वहां मना लेते हैं, ठीक। तो अभी तक का जो भी इवेंट था वो छोटा सा, कभी 2 घंटे का होता था या फिर किसी एक दिन का हुआ होगा, मतलब कोई ऐसा बड़ा इवेंट या फिर बहुत ज्यादा मजेदार नहीं हुआ था। तो इसके बाद बाकी टाइम में क्या होता था, पदार्थ संहिता एनएट फिजियो में हम उलझे यूं रह गए। कॉलेज लाइफ में फंक्शन या इवेंट क्या होता है शायद हम भूल गए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, हर रोज 9 से 6 के क्लासेस से हम हो चुके थे परेशान। इसी बीच चारों तरफ खुशी की लहर बिखर गई जब गणेश चतुर्थी की खबर हर जगह फैल गई। ये तो पहला इवेंट था, बहुत अच्छे से मनाया गया था, और थैंक्स टू आवर सीनियर, इसलिए सीनियर से बना के रखना है, नहीं तो आओगे सब लोग 12 बजे तक नाचेंगे, तुमको 10 बजे घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और तुम उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक तुम पे हमारा साथ नहीं होगा, हमारे ऊपर वाले पे तुम पे कोई हाथ नहीं रखने वाले, ठीक है। तो थोड़ा सा सीनियर्स को रेस्पेक्ट करना है, तो जो भी तुम लोग ईगो एरोगेंस लेके आए हो उसको थोड़ा सा जब सीनियर से मिला तो साइड में रख जाना, ठीक ना। क्योंकि तुम जितना मार्क्स लेके आओ यहाँ उससे ज्यादा मार्क्स लेके आए। देखो हमारा सीआर 600 नंबर लाके प्रतिमा में बैठा रहता है। तो ऐसे लोग हैं जहाँ
कुछ लोग अभी भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है, चलता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब एरोगेंस नहीं दिखाना है, रिस्पेक्ट करना है। और तो 3 दिन तो हाँ, इसी बीच चारों तरफ खुशी की लहर बिखर गई जब गणेश चतुर्थी की खबर हर जगह फैल गई। 3 दिन आने वाला था खूब सारा मजा, ये 3 दिन का इवेंट हुआ था हमारा। 3 दिन आने वाला था खूब सारा मजा, क्योंकि हमारे धन्वंतरी मंदिर पधारने वाले थे आयुर्वेद चाराजा। ठीक है, ये गणेश जी को आयुर्वेद चाराजा, आयुर्वेद का राजा माना जाता है, तो इसलिए लिखा है कि 3 दिन आने वाला था खूब सारा मजा, क्योंकि हमारे धन्वंतरी मंदिर पधारने वाले थे आयुर्वेद चाराजा। ये सोया तुम्हारे वीडियो में चक्कर में सोया नहीं है। हाँ, तो यही था गणेश चतुर्थी। देखने में थोड़ा कम मजेदार नहीं लगी, लेकिन जब था तो बहुत मजा आया था। सबको आया था कि नहीं? हम झूठ बोल सकते हैं राइमिंग के लिए, बाकी लोग थोड़ी ना। ठीक, तो अब चलो, फिर बोल रहा है क्या झूठ। तो गुजरात में रहकर नवरात्रि नहीं देखा तो इसका मतलब कुछ नहीं देखा। गणेश चतुर्थी के 10 रात नवरात्रि हुआ था, तो गुजरात में रहकर नवरात्रि नहीं देखा इसका मतलब आपने कुछ नहीं देखा है। वो 5 दिन का इवेंट था, 5 दिन और 4 रात। तो 5 दिनों का था यह फंक्शन। टिमली गरबा की हो चुकी थी प्रिपरेशन। देखो ये गुजराती डांस फॉर्म है, टिमली और गरबा। अगर गुजरात में रहना है तो गरबा से दोस्ती रखना है, तो तारक मेहता शुरू को दया फॉलो करते रहो, ठीक है। तो 5 दिनों का था ये फंक्शन। टिमली गरबा की हो चुकी थी प्रिपरेशन। 4 रात हम बस नाचते ही रहते थे। पढ़ाई ये क्या होता है? अब इससे हमारे कोई रिश्ते थे कि ये जो 5-6 दिन एक फिर पूरा गणेश चतुर्थी। बाकी लोगों का तो नहीं पता, मुझे लिखने का थोड़ा शौक है, तो जब से मैं कॉलेज में हूँ तब से बस लिख ही रहा हूँ। बस कोर्स का नहीं लिख पाया आज तक। यही कभी नाटक, कभी नौटंकी, कभी गाना, कभी कुछ गाना नहीं, ये क्या बकवासी है, एक तरह का राइमिंग कुछ भी ऐसा करते रहते हैं टाइम पास के लिए। अभी जाएंगे तो संहिता पढ़ेंगे तो लोग जैसे तेज हो जाओगे, रिस्पेक्ट भी तो जरूरी है, तो ठीक है। तो 5 दिनों का था ये फंक्शन। टिमली गरबा की हो चुकी थी प्रिपरेशन। 4 रात हम बस नाचते ही रहते थे। पढ़ाई ये क्या होता है? अब इससे हमारे में कोई रिश्ते नहीं। तो ऐसा था कि ये गुजरात गणेश चतुर्थी हो गया, उसमें भी बहुत सारे कल्चरल इवेंट होते हैं, तो जिनका भी जो टैलेंट है, गाना गाना, लिखना, सुनना, डांस करना, वो सब वहाँ पे सुन गा सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या था कि ये हुआ, उसके बाद न्यू ईयर आया। इससे बीच में भी बहुत सारे छोटे मोटे इवेंट हुए थे, कभी चरक जयंती, कभी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है छोटे स्केल पे, बट जो बड़ा स्केल है वो ये दोनों फेस्टिवल जो था वो सबसे बड़ा था। मतलब इसमें इतना ज्यादा बड़ा था कि पढ़ाई तो शायद ही कोई किया होगा, कोई 1-2 महीने का टाइम था ऐसा जहाँ कोई पढ़ाई नहीं किया, सब इसी में मस्ती में रहते थे। सुबह उठो, थकान मिटा, और फिर शाम में जाओ लंच किया, और फिर थक गया, और फिर थकान मिटा, और ऐसा सीक्वेंस चलता रहता था। इसके बाद क्या हुआ कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ, जो कि हमारे कैंपस में नहीं हुआ था, बट हमारे कॉलेज के नाम पे थोड़ा सा सब्सिडाइज था। जब इस वीडियो में है तो बोल दे रहे हैं, वैसे हमारे कॉलेज में नहीं था, वो कैंपस में नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था, इसलिए देखो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा होगा कि वो कॉलेज में नहीं था, ठीक है। तो वो बाहर ऑर्गेनाइज किया गया था, बट कॉलेज के नाम पे 54 रुपए का डिस्काउंट मिला था, ठीक है। 54 रुपीज ओनली, ठीक है। 300 का टिकट था वो, जो कि 246 में मिला था हम लोगों को कॉलेज के नाम पे। तो ये भी कॉलेज का खासियत है, फीस भी कम है, और जहाँ ज्यादा है वहाँ पे थोड़ा कम करा दिया जाता है। लड़कियों का कम है, लड़कों को देना पड़ता है। तुम्हारा 299 रुपया, हमारा 2099 रुपया तो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ था किसी रिजॉर्ट में, लेकिन हमारे मेजॉरिटी बैचलर्स जो वहाँ पहुँच गए थे, इसलिए वो बहुत ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बाहर रिजॉर्ट में हुआ, तो वो ITRA का रिजॉर्ट लग रहा था। मतलब अगर 700 लोग थे तो वहाँ पे 200 लोग ITRA के थे, जिसमें 50-60 लोग हमारा फर्स्ट ईयर था। तो वो ऑलमोस्ट ITRA का ही इवेंट था, लेकिन बाहर ऑर्गेनाइज किया गया था हमारे पैसे पे। जैसा कि प्राइवेट कॉलेज में होता है ना, अपना पैसा दो, अपना कॉलेज बना लो, अपना ही पढ़ लो, लेकिन 1 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक। भैया है तो क्या दिक्कत है, करवा लेंगे। तो अब चलो जनवरी से बाद ये हो गया न्यू ईयर, यानी अब जनवरी में लोग एंटर कर चुके हैं, ठीक। तो जनवरी इज इनकम्प्लीट विदाउट 26। जोर से बोलो भाई। मतलब है बहुत सारा फेस्टिवल अपने हिसाब से, लेकिन रिपब्लिक डे जो सबसे मेजर फेस्टिवल होता था वो उसके में इनकम्प्लीट था। तो ये फिर IPGTR, मतलब जो हमारा PG कैंपस है पीछे, देखा ही होगा तुम लोग में, कितना अच्छा लगता है। जो भी इस कॉलेज में एडमिशन लगता है सबसे पहले PG बिल्डिंग देखता है।
और खुश हो जाता है, हाँ क्या कॉलेज है, हाँ ऐसा आयुर्वेदिक कॉलेज, मजा आएगा। फिर उसको वहां से भगाया जाता है, चलो निकलो पीछे जाओ, तो पीछे का बताया क्या जाता है, धन्वंतरी मंदिर, गो टू धन्वंतरी मंदिर। और नाम सुनते ही लगता है अच्छा चलो अब लग रहा है आयुर्वेद, मंदिर में पढ़ेंगे, भगवान खड़े होंगे, ठीक लोगों कुछ पढ़ाएंगे, केला से चढ़ाएंगे, ऐसे आयुर्वेद पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम ज्यादा हो गया बस। वो चलो आपको जल्दी, हाँ तो वो एक मेरे को भी देते सलाम करेंगे। म्यूजिक क्लब, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, गाना वाना जो भी टैलेंट है आपके अंदर आप दिखा सकते हो। ठीक, अब जब इसके बाद एक ऐसा इवेंट था जो ना कॉलेज ऑर्गेनाइज किया था, ना किसी एक आदमी के बलबूते होने वाला था। वो इवेंट था हमारा सरस्वती पूजा। वो पूरा इवेंट शुरू कहाँ से होता है, डांस से। डांस से शुरू हुआ था। डांस इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि डांस चलो जो बोल शुरू कर मतलब क्या कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल मैम को किसी डांस से सुनाई थी कि बिना परमिशन के मतलब एप्लीकेशन के हम लोग कॉलेज में तंबू गाड़ के सरस्वती पूजा मनाना शुरू कर दिए। मान लिया सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल नहीं है, यहाँ पे गाया भैंस कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा परमिशन लेना पड़ता है। तो उसके बाद हमारे विपत्ति के साथी श्रीमान शशिकांत जी, इनके बेस में हमने सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि विद स्टार्टिंग फ्रॉम स्कोल्डिंग टू अप्रिशिएशन, मतलब शुरुआत स्कोल्डिंग लेकिन जब खत्म हुआ था तो जो भी सीनियर्स या जो भी टीचर वहां पे थे, दे वर लिटरली अमेज्ड कि ऐसे छोटे से जगह में इतना अच्छा कैसे मतलब वो सेलिब्रेशन ऑफ सरस्वती पूजा। It went from scolding to appreciation, from scratch to